السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت جناب؟ الحمدللہ، اپنا سنائیے۔ اپنا سنائیے کیسے؟ ہاں ٹھیک ہو الحمد للہ۔ آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ کیوں مطلب؟ ہاں آپ کی تھوڑا آواز آ رہی ہے، کم آ رہی ہیں۔ آواز تو آنی چاہیے۔ ہاں آ رہی ہیں لیکن کم آ رہی ہیں۔ سنائی دے رہا ہے نا؟ ہاں جی آپ سنائی دے رہا ہے۔ ہاں تو بولیے کیا دقت ہے؟ نہیں دقت کچھ نہیں تھی، میں تو سکون سے سویا ہوا تھا، لیکن آپ نے کہا وہ کیا میں بھی سکون سے سویا ہوا تھا۔ گروپ پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے سیدھے ایک کمنٹ دیکھا تو میں نے ٹھیک ہے وہ گروپ والوں سے مطلب نہیں کی میرے بھائی، دیکھ لیجیے میں نے پہل کی تو آپ بتائیے۔ سوچیے وہ گروپ والے کو جانے دیجیے۔ میں یہ بول رہا تھا دراصل میرا کہنا صرف دیکھیے پہلی بات یہ کہ دیکھیے میری بات میرے بھائی آپ سمجھدار لگ رہے ہیں۔ میں نے کل رات گفتگو کی گروپ میں، دوسرے گروپ میں، تو وہاں پہ مطلب 10 لوگ آ رہے ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے، نہیں سنیے نا، وہ چھوڑیے نا، ہم نے 24 سال زندگی میں کیا کیا نہیں کیا چھوڑیے، وہ سب جانے دیجیے، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کمنٹ کیا تھا نا میری اس کے نیچے، میرا صرف اتنا کہنا تھا کہ آج کے دور میں سبھی تقلید کرتے ہیں، سبھی تقلید کرتے ہیں۔ اب میرا کہنا ہے جب آدمی تقلید کرتا ہے تو جب وہ خود کر رہا ہے تو دوسرے کو یہ نہ کہے کہ وہ تقلید کرنا شیئر کرے۔ میرا صرف اتنا کہنا تھا۔ ابھی اس پر سے بولیے آپ کیا؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ہم جو اہل حدیث جماعت سے بات نہیں کر رہے، جماعت سے سنیے ہم اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مطلب بات کی جاتی ہے تو نظریے کی بات ہوتی ہے، عوام کی بات نہیں کی جاتی، سمجھے نا؟ نہیں میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے جو کہا وہی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کا جو نقطۂ نظر ہے کیا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی مطلب مسلمان غلط کر رہا ہے تو آپ اسلام کو غلط نہیں کہیں گے نہیں کہیں گے نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اہل حدیث غلط کر رہا ہے تو اس کو آپ اہل حدیث جماعت اہل حدیث کا جو نقطۂ نظر اس کو آپ غلط نہیں کہیں گے، بالکل نہیں تو وہ تو لیبل لگا رہے ہیں نا آپ کا۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ اگر کوئی ایک منٹ جب اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کا ذمہ دار اسلام تھوڑی ہے نا، میں مانتا ہوں یہ بات، اسلام تو منع کرتا ہے اس سے، لیکن وہ لیبل آپ کا لگا رہے ہیں نا خاص طور سے اہل حدیث۔ تو وہی نا کہ اہل حدیث ہے تو اس کا مطلب اہل حدیث جماعت اہل حدیث غلط ہے، وہ نہیں یہ کام آپ لوگوں کا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں۔ تو پھر میں تو بائیکاٹ ہوں تو اہل حدیث میں نے مانتا ہی نہیں، جب آپ لوگ بائیکاٹ نہیں کرتے آپ ابھی دیکھو میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کے انٹرنیٹ پر افو خان، اسماعیل لنگڑا، ندیم الوی، رضوان کلفی ایسے کھاوڑ لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ کون؟ ندیم الوی، رضوان کلفی، اسماعیل لنگڑا اور افو خان ایسے لوگ علامہ بنے پھر رہے اور نام اہل حدیث کا لگا رہے ہیں۔ میرے بھائی معذرت میں ان کو نہیں آتا، اگر مجھے میرے اندر اتنی طاقت، میں تو یہ چھوٹا طالب ہوں، اگر طاقت ہوتی تو میں ان لوگوں کو برسر اہل حدیث سے خارج کر دوں گا میں۔ اور آپ مجھے بتائیے پرسنل میں کوئی ہے تو بتائیے کہ میں اس کو کہوں گا اہل حدیث نہیں ہو سکتا اگر وہ اہل حدیث کے نقطۂ نظر کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، سمجھے نا؟ اس طریقے سے اللہ کو جانتے ہوں گے آپ، انہوں نے کہا تھا کہ وہ شخص اہل حدیث کیا مسلمان نہیں ہو سکتا جو امام ابو حنیفہ کو گالی دے۔ جی میں ان کا بیان سنا تھا، ہاں ان کا بیان میں نے سنا۔ ہم لوگ الحمدللہ اتنے متشدد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو الحمدللہ آرام سے بات ہو سکتی ہے، لیکن گروپ میں آپ دیکھیں نا، گروپ میں 10 لوگ کسی کو لگاتے ہیں تو وہاں بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے تو آپ کو کیا کہا، میں نے آپ کو خود کہا کہ میں انشاءاللہ آپ سے کال پر بات کروں گا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ مجھے آپ سنجیدہ مزاج لگے، اس لیے۔ ہاں چلیے تو آپ بولیے کیا؟ میرے صرف اتنا کہنا کہ تقلید ہر انسان کر رہا ہے اس دور میں، بس اتنا کہنا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیسے ہم اہل حدیث تقلید کر رہے ہیں، آپ یہ ثابت کیجیے۔ جی جیسے ہم امام ابو حنیفہ ہی کرتے ہیں، جیسے امام حنبلی کرتے ہیں، جیسے شافعی کرتے ہیں، جیسے مالک کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم ان امام کو فالو کرتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں تقلید، لیکن ہم اہل حدیث میں کیسے کرتا ہوں تقلید؟ میں تو کہتا ہوں کہ میرا ماننا قرآن اور حدیث ہے۔ اچھا میری بات سنیے جناب، جب میں کہوں گا تو آپ خاموش رہیں گے، جب آپ کہیں گے تو میں خاموش رہوں گا، ٹھیک ہے؟ بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا، وہی بتا رہا ہوں۔ آج ہر انسان تقلید کر رہا ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، کوئی بھی ہو۔ اب کیسے کر رہا ہے، ہم کیسے کر رہے ہیں اور آپ کیسے کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں 1 منٹ کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہم قرآن و حدیث کی تشریحات کو سمجھنے کے لیے پیروی نبی کی کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی تشریحات کو سمجھنے کے لیے فقہی مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے سمجھ کر نبی کی پیروی کر رہے ہیں، وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح مکہ میں جو مالکی مسلک کے لوگ ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، تو یہ لوگ حنبلی شافعی مسلک کی تشریحات پر اعتبار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اہل حدیث حضرات جو ہیں، اب وہ امام ابو حنیفہ کو امام تو مانتے ہیں، حنبلی کو بھی امام مانتے ہیں، سب کو امام مانتے ہیں، لیکن ان کی یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم جو رسول اللہ کی مانتے ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں، دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو کرتے ہیں آج کے اپنے علماء کی ہی مانتے ہیں، وہ جو تشریح پر بتاتے ہیں اسی کو مانتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ وہ کہیں گے کہ یار بخاری میں جا کر دیکھو، اب بخاری میں کہیں گے تو وہ بھی بخاری نبی رسول اللہ نے تھوڑی کہا کہ وہ صحیح ہے کتاب،
वो तो किसी तहकीक की बिना पर कह रहे होते हैं। तो तहकीक बगैर दलील किसी को मान लेना, उसी को तकलीफ कहा जाता है। आप भी ये तारीफ करते हैं। अब आप बोलिएगा, मैं खामोशी सुनूंगा, ठीक है? हाँ मैं बोलो। जी बिल्कुल बोलिएगा। हाँ तो आपने कहा कि अहले मतलब तकलीफ इस एतबार से करते हैं कि अपने उलमा की मानते हैं। जी जी मेरे भाई देखिए, उलमा की बात मानना, ठीक है ना, किस बुनियाद पर तकलीफ होता है? तकलीफ कहते हैं किसी इमाम एक इमाम की बात मानना, ठीक है? वो जो कहे बगैर दलील सुने ही। नहीं, ये तारीफ कहाँ से, ये तारीफ आपने कहाँ से पढ़ी कि तकलीफ एक इमाम की मानना? मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको नहीं अभी बताएं ना, आप मुझे बताएं, भेजने वाला सिस्टम जाने दीजिए। अच्छा तक बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगी। एक किताब का हवाला दीजिए, सफा नंबर बोलिए। जुबैर अली ज़ई का नाम जानते होंगे? जुबैर अली ज़ई का मैं मुकल्लिद नहीं हूँ। आप होंगे, हम नहीं है ना जनाब, आप होंगे। मैंने यही कहा था। देखिए आपने, देखिए एक बात, ठीक है, आज जुबैर अल्लाह रसूल की बात करते हैं ना आप, देखिए बीच में जुबैर अली क्यों आया, मुझे बताइए। देखिए कुरान से दलील दीजिए, हदीस से दलील बताइए जी। हाँ, कुरान में है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, अगर तुमको नहीं आता है तो तुम पूछ लो। लोग कहते हैं कि भाई पूछना ही तकलीफ है, यानी पूछ के चलना ही तकलीफ है। गलत बात है। हम कहते हैं पूछो किसी आलिम से, तो आपको कोई मसला है, जैसे मोबाइल, जैसे तस्वीर लेनी हराम है कि जायज़ है, ठीक है? हाँ तो वो जो कहेगा तो किसी आलिम के पूछने भाई हराम है कि, वो कहेगा कि हराम है, तो उसको मान लेना तकलीफ नहीं है। हम उसको कहेंगे कि आप जो हराम का फतवा दे रहे हैं ये किस दलील की बुनियाद पर है? तो अगर वो दलील देता है, अगर दलील देता है कुरान की या हदीस की, तो हम उस दलील को मानते हैं, ना कि उस आलिम की बात को मानते हैं। अगर वो आलिम कोई दलील नहीं देता, हम उसको ठुकरा देते हैं। तो इस आलिम की दलील को मानना, आलिम को मानना नहीं हुआ, बल्कि दलील को मानना हुआ। बेशक दलील को मानना ये नबी की तबा है, आलिम की तकलीफ नहीं है। जी बेशक, तो वही मेरी बात है। तो हम तकलीफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? फरमाया, बिल्कुल। किसी भी आलिम से जाते हैं, पहले तो कहते हैं दलील दीजिए, दलील दीजिए। अगर दलील देता है तो मानते हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल के हदीस है कुरान से, तो फिर हम कुरान को मार रहे हैं सीधे, हम किसी आलिम को नहीं मार रहे, समझे ना? हाँ दूसरी तो अब मैं बोलूँ आपको थोड़ा सी, आपकी बात हो गई। हाँ बिल्कुल आपने 100% सही कहा, और मैं इस पर 10 दफा अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, बिल्कुल यही मामला तो हम भी करते हैं। हम इमाम अबू हनीफा की तशरीहात को मानते हैं, तो हम उनकी अपने घर की बात नहीं मानते ना, हम तो रसूलुल्लाह की पैरवी करते हैं। लिहाजा उनकी तशरीहात से जो उन्होंने रिसर्च की है, तो हम उनकी रिसर्च को, जो तशरीहात पर उनकी एतबार करके हम रसूलुल्लाह तक पहुंचते हैं। तो किसी इमाम की बात को मानना कहाँ तकलीफ हो गया? अगर ये तकलीफ नहीं है तो फिर झगड़ा किस बात का है? रसूलुल्लाह की मान रहे हैं, इमाम अबू हनीफा थोड़ी मान रहे हैं उनके घर की। हम तो रसूलुल्लाह की बात इमाम अबू हनीफा से समझ रहे हैं, जैसे आप अपने आलिम से समझ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें झगड़ा किस बात का है जनाब? अच्छा, तो आपने कहा कि मैं अबू हनीफा से समझ रही, ठीक है ना? बिल्कुल ये बताइए। और सिर्फ हम नहीं, सुनिए एक मिनट जनाब, एक मिनट मेरी बात फिर आप कीजिएगा। मेरी बात आधी है, मैंने कम वक्त लिया। चलिए। और सिर्फ हम नहीं समझ रहे हैं कि इमाम, बल्कि इमाम हरम भी इमाम अहमद बिन हम्बल समझ रहे हैं, मालिकी वाले से समझ रहे हैं, शाफई से समझ रहे हैं, सिर्फ आप नहीं समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आपने ये कहा कि हम अबू हनीफा समझ रहे हैं। अब ये बताइए कि जो नए मसाइल आए हैं, ठीक है, नए मसाइल, इमाम अबू हनीफा को गुजरे ये सन 80 पैदाइश हुई उनकी, और सन 150 में उनकी वफात हुई, ठीक है? 150 की मालूम होगा। तो उस दौर के वो थे, दूसरी सदी हिजरी के वो दौर के थे, दौर के आलिम है। अब बताइए कि 14वीं सदी हिजरी, 15वीं सदी हिजरी के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो वो इमाम अबू हनीफा से कैसे हम कह सकते हैं कि इमाम अबू हनीफा हमको सिखला रहे हैं? दरअसल बात कहाँ है, उनके फतवे कहाँ है? अच्छा उनके फतवे मैं मुकम्मल नहीं किया बात। ठीक है बोलिए आप। हाँ तो वही कह रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे यूट्यूब चैनल की जो कहते हैं क्या मोनेटाइज करते हैं ना, मोनेटाइज करना जी मसला हो, तो फिर इमाम अबू हनीफा ने इससे कोई फतवा नहीं दिया, क्योंकि उस जमाने में था ही नहीं। तो हराम और हलाल का जो फतवा लगेगा वो किसी आलिम ही देगा। तो आलिम जो देगा तो उसको तो इमाम अबू हनीफा पे नहीं जाएगा। इमाम हनीफा की कहा कि हर मसला इमाम अबू हनीफा से साबित है। किसने कहा मेरा भाई? बहुत सारी ऐसी चीजें इमाम अबू हनीफा की, बहुत सारी चीजें जो आपने रद्द की है, जो नहीं ली है मेरा भाई। तो भाई इस दौर में आप किसी दूसरे आलिम की मार रहे हैं, क्यों करेंगे? ये तो जो ऐसा सुनिए ना मेरी बात, ये तो आप मेरे भाई ये बताइए पहले कि आप मार रहे हैं किसी और, मिसाल के तौर पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को मार रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल की मतलब मिसाल के तौर पे हराम है, नहीं करना चाहिए, मोनेटाइज नहीं करना चाहिए। तो आप तो मार रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, तो या मुफ्ती तारिक मुस्लिम साहब की, या जमीन तारिक नबी साहब की, तो फिर आप क्यों करें कि हम इमाम अबू हनीफा को मार रहे हैं? नहीं, जो मुफ्ती तारिक मसूद की हम मान रहे हैं, तो
वो मुफ्ती, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम इमाम अबू हनीफा, देखो आप समझे, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप थोड़ा सी गौर कीजिए इस पर, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझेंगे। जैसे मैंने बताया ना आपको कि हम इमाम, आपने खुद बताया, मैंने क्या, आपने बताया कि हम हमारे इमाम की मान रहे, तो इसका मतलब हमारे इमाम की नहीं बल्कि वो रसूलुल्लाह की मान रहे हैं, लेकिन उनके जरिए मान रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि हम अगर इमाम अबू हनीफा की मान रहे तो उनकी नहीं मान रहे बल्कि उनके जरिए रसूलुल्लाह की पैरवी कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर मैं तारिक मसूद की मान रहा हूँ या मुफ्ती तकी उस्मानी की मान रहा हूँ, तो मुफ्ती तकी उस्मानी जो है उसी वहीं तक जाते हैं, वो इमाम अबू हनीफा तक, क्योंकि वो बड़े इमाम है। एक मिनट बीच में नहीं बोलिए, बीच में ना बोलिए। अगर इमाम अबू हनीफा से बड़ा कोई इमाम है उनके बाद के दौर में, अभी आप मुझे बता दें, हम उनकी तकलीद करना शुरू कर देंगे। चले बताएं कौन है? आप बीच में ना बोले, पहले मेरी बात सुन ले। जब मुफ्ती तकी उस्मानी के हम कोई ऐसा मसला पूछेंगे, अगर इमाम अबू हनीफा से साबित होगा तो वो जरूर बताएंगे वहां तक। अब इमाम अबू हनीफा तक बात पहुंचेगी तो यकीनन वो सहाबा का शागिर्द है इमाम अबू हनीफा, यहाँ तक कि बुखारी के जो दादा उस्ताद है उनका भी उस्ताद है इमाम अबू हनीफा। तो वो इतना बड़ा इमाम जब कुरान इसमें रिसर्च करेगा तो उनकी बात हम मानेंगे, इसलिए नहीं कि वो उसकी अपनी बात है घर की, बल्कि वो रसूलुल्लाह से उसने सीखा है, सहाबा का शागिर्द है ना, तो वो आज आकर सिलसिला नबी तक मिलता है। तो इसमें कौन सा मसला हो गया मेरा भाई, ये बता दो आप तो वहां तक भी नहीं गए। सुनिए, हमने तो इमाम अबू हनीफा तक चले गए, सहाबा के शागिर्द तक, आप तो वहां तक भी नहीं पहुंचे मेरा भाई। अगर पहुंचे तो बता दें आप। भाई आप कर रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी इमाम अबू हनीफा को बीच में ला क्यों रहे अल्लाह के रसूल? दरअसल मामला ये है, दरअसल अभी आपने जुबैर अली को बीच में क्यों लाया था, ये बता दो कि उसने लिखा है किताब में आलिम दीन मुफ्ती, ये आलिम नहीं है, ये बड़े उलमा नहीं है उम्मत के। आप बात सुनिए कि खुद आलिम आप कहते हैं कि आलिम के लिए ही सिर्फ अगर आलिम दीन के ऊपर आलिम दीन नहीं होता है, आलिम दीन के लिए तकलीफ जायज नहीं है। आलिम दीन के ऊपर आलिम दीन नहीं होता है। मुजतहिद के लिए, एक मुजतहिद के लिए किसी दूसरी मुजतहिद की तकलीफ वाजिब नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, आप एक आलिम के ऊपर एक आलिम नहीं होता है। अपनी बात कर रहे हैं अब भाई, तो बताइए ना, नहीं गुमराह नहीं कर रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं। नहीं देखिए, अगर आप इज्तिहाद कर रहे हैं तो फिर आप, मैं भी इज्तिहाद कर रहा हूँ, दोनों इज्तिहाद। आप कैसे इज्तिहाद कर सकते हैं? आप कैसे इज्तिहाद करें? आप किसी मुज्तहिद, आप मुज्तहिद हैं आप? अब मिसाल के तौर पर बोला, अगर नहीं मिसाल के तौर पर मुज्तहिद कैसे हो गए आप? आज ने इज्तिहाद कैसे कर लिया मिसाल के तौर पर? फर्ज मान लीजिए ना, फर्ज कैसे मान लूं जब आप मुज्तहिद हैं तो इज्तिहाद कैसे फर्ज मान? अच्छा छोड़िए, अगर एक बात सुनिएगा, आप इतनी दूर मत जाइएगा। देखो मैं बात बताता हूँ आपको, इस पर कोई फड्डा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो एक मिनट, इस पर कोई फड्डा नहीं है। तकलीद आप भी करते हैं, तकलीद हम भी करते हैं, वही तो अगर बात वहीं आ रही है तो दूसरी बात करें। आप मुफ्ती तकीद को मार रहे हैं तो आप, अच्छा मेरी बात सुनिए, अब अगर आपने मुफ्ती तकी उस्मानी को लाया है ना, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। आप अगर कहेंगे 3 तलाक़ें एक है, ठीक है, आप कहते हैं ना 3 तलाक़ें एक, हम कहते हैं 3 है, तो आप किसके जरिए सीखेंगे 3 तलाक़ें एक है? आप किसके पास जाएंगे ये बताओ? आपके कितने बड़े आलिम, आपके मोतबर आलिम अभी कौन से इस दौर के, ये बता दीजिए। चले आपका सवाल, आपका जो जवाब है, आपके सवाल के अंदर ही जवाब देता हूँ मैं। चलिए बताएं। नहीं अब मैंने जो कहा वो जाने दो, अब आपने जो कहा उस पर बात करो। आपके इस दौर के सबसे बड़े आलिम कौन है आपकी नजर में, सबसे मोतबर, ये बताओ। नहीं कुरान हदीस, कुरान का दावा सब कर रहे हैं। अभी जिससे आप दीन सीखते हैं रूबरू या आपने सामने, वो बताया। हम किसी आलिम को कंपेयर नहीं करते, ये गलत बात है। अभी पहले ही टाइम में आपने जुबैर अली का हवाला दिया था। अच्छा मुझे एक बात बताया, अभी 3 तलाक का मसला आपके सामने आएगा, मेरी बात। अगर आपने इकट्ठी 3 तलाक़ें दी किसी को, पूछा है कि अहले हदीस के बड़े उलमा कौन है, ठीक ना, बड़ा आलिम दीन, मैं कहता हूँ कि अहले हदीस की नुमाइंदगी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो फिर अगर ऐसा मतलब जिसकी नुमाइंदगी कोई नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे मतलब को यतीम, बेवा, मिस्किन, फकीर कहा जाएगा। मसलक और मैं इसको साबित कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह से कि जिस मसलक की नुमाइंदगी कोई नहीं कर सकता, जिसका इमाम कोई ना हो, बल्कि जामिया तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फसाद उम्मत के वक्त तो अपनी जमात के मुसलमानों के जो इमाम है उनको पकड़े रहो और बड़े गुरोह में रहो, जो बड़ा गुरोह है ना जमात का मुसलमानों को, उसमें रहो। रसूलुल्लाह की हदीस आप क्यों नहीं मानते हैं, ये बताएं। देखिए हमारा जो मसलक का नुमाइंदा है, हमारा ना करें, रसूलुल्लाह की बात करें आप, तुम्हारे से मुझे कोई मतलब नहीं। रसूलुल्लाह की बात, रसूल अकरम हमारे मसलक की नुमाइंदा, रसूलुल्लाह की बात नहीं मान सकता। रसूलुल्लाह ने, रसूलुल्लाह की हदीस आई हुई है, सुने, जामिया तिरमिज़ी में रसूलुल्लाह की हदीस आई हुई है कि रसूलुल्लाह ने कहा, जामिया तिरमिज़ी में, अच्छा हाँ मैं आपको बताऊंगा कि जामिया तिरमिज़ी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फसाद उम्मत के वक्त जब जैसे फड्डा चल रहा हो, जैसे भी चल रहा है, तो उस वक्त तो मुसलमानों के बड़े गुरोह में रहो। ये 2 हदीसें मनकूल है, अलग अलग है, लेकिन इसमें अल्फाज ये है कि मुसलमानों के इमाम को भी लाजिम पकड़ो जो तुम्हारा इमाम हो। अच्छा जी, अब आप कह रहे हैं कि हमारा कोई रहनुमाई नहीं करता, तो फिर ऐसे मतलब को कहा जाता है। इमाम अहमद बिन, सुनिए मेरा, इमाम अहमद बिन हम्बल के जमाने में खल्क़े कुरान का जो फितना उठा, कौन सा लोग जाने खल्क़े कुरान, सुने ना,
खल्क़े कुरान का जो फितना उठा तो लोग किस तरफ जाते थे, आप ये बताइए। नहीं आप बताएं मुझे, आप समझा रहे हैं तो आप समझाते, पूरा आप समझाएं। तो देखिए, तो आप सब जानते हैं लोग, नहीं आप समझाइए। कुरान तो समझा तो रहा हूँ कि लोग ये अक्सर लोग ये मानते थे कि कुरान जो है वो मखलूक है, ठीक है। इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ चंद लोग थे, वो भी बीच में भाग छोड़ के भागे। इमाम अहमद बिन हम्बल अकेले उन्होंने मुकाबला किया, पूरे मतलब उस वक्त की बादशाह और हुकूमत से मुकाबला किया। दुर्रे खाए, उनको मारे गए, कोड़े मारे गए, बल्कि कहा जाए कि इतने जोर से मारे गए, इस कदर शिद्दत के साथ मारे गए कि अगर वो कोड़े हाथियों को भी लगते तो पागल हो जाते, इतनी शिद्दत के साथ वो अकेले हक पर खड़े रहे, ठीक है ना। तो ये बात साबित है कि जब 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 लोग अक्सर लोग गुमराही के हो तो वहां पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिएगा, आपने गलत बात कर रही। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये जामे तिरमिजी में भी ये हदीस मौजूद है, शायद तिरमिजी शरीफ में है, हाँ बराबर। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत का इजमा कभी गुमराही, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो, जो मेरी उम्मत का इजमा कभी गलत चीज पर नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि उस वक्त मत जाओ जब गुमराही, रसूलुल्लाह की हदीस के मुखालिफ जा रहे हैं। बताइए कि उस वक्त जो लोग सब उस वक्त तो छोड़े, सुनो उस वक्त तो छोड़े, इस वक्त की सबसे बड़ी जमात कौन सी है बताओ, अकेले थे, सबसे बड़ी जमात कौन सी है बताओ, हनफी मालिकी शाफी हंबली है या नहीं है ये बताओ, ये बताइए कि उस तादाद इस वक्त तो सबसे बड़ी जमात कौन सी है। एक आप बात भूल रहे हैं कि जो ज्यादा कुछ नहीं भूल रहा हूँ नहीं होते, मैं है ना, मैं डायरेक्ट रिवोल्ट से ही बात कर सकता हूँ पीछे जाकर। आपने कुरान मजीद में खुद पढ़ा होगा वमा अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, ठीक है ना। अक्सर जो लोग ईमान रखते हैं वही मुशरिकी है, अक्सर लोग। एक जगह टिक कर क्यों नहीं बात करते हैं जनाब आप, मैं देख रहा हूँ आप इधर से उधर इधर से उधर। वही तो आप भी तो आप मुझे एक बात बताइएगा, जो आपने कहा कि उधर मत जाओ जिधर गुमराही है, तो मुझे एक बात बताएं, रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, तो आप मुझे बताएं कि आप मुसलमानों के बड़े तबके को फॉलो करोगे कि छोटे, जबकि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मुसलमानों की बड़ी जमात में रहो, और मुसलमानों का जो जमात है वो कभी, उसका जो इजमा है वो कभी गुमराही गलत चीज पर नहीं हो सकता। उम्मत का जब भी इजमा होगा, जैसे 3 तलाक पर इजमा है, उस्मान गनी रज़ी की 2 अज़ान पर इजमा है। आप हदीस को सही से बयान नहीं कर रहे हैं। नहीं हदीस को मैं बिल्कुल सही, अगर गलत हो तो मेरे मुंह पर मार दें। उम्मत की बड़ी जमात, उम्मत की भाई ये हदीस में कि उम्मत किसी बुरी चीज से इजमा नहीं कर सकती, ठीक है। उम्मत, मेरी उम्मत जमा नहीं हो सकती, ठीक है ना। जमा नहीं, किसी गलत, मैं तो वही कह रहा हूँ, क्या जमा नहीं कर सकती। आप ये नहीं कि मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात कहाँ है, सुनो मेरी बात, मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात कहाँ है, मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात कहाँ है। हदीस पढ़ी तो थोड़ा, हदीस में आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। आप कह रहे पहले करे सेंड करने की बात, मैंने नहीं तो मैंने तो आपको जोर नहीं दिया, आपने कहा कर दे दूंगा, तो मैंने नहीं कहा। आप अपने बारे उसूल बना रहे हैं, हमारे बारे में उसूल क्या, मैं अगर रसूलुल्लाह की झूठी बात करूँ तो आप मेरा कॉलर पकड़ लेना। मैंने कहा कि तकलीफ की आप, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस पर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सही हदीस पढ़ा, अगर गलत हो तो मेरा कॉलर पकड़ना फोन रखने बाद, इसमें कौन सी बात हो गई आपसे बिगाड़ने वाली डिस्कशन हो रही। तो अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं कि हम अगर इमाम अबू हनीफा सहाबा के शागिर्द समझे तो ये गलत हो गया, और आप आजकल के उलमा की मान लेते, ये सही कैसे हो गया। पहले तो ये साबित कीजिए कि इमाम, अब देखिए अब कहाँ चले गए यार, अब इमाम अबू हनीफा को आप सहाबा के शागिर्द बता रहे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो भाई, वो तो मैं आपकी इस बात पर ऐसा लग रहा है कि इमाम अबू हनीफा को हम काफिर कर रहे हैं, गलत बात है। वैसा करें, इमाम अबू हनीफा शागिर्द है, किन सहाबा के शागिर्द हैं, थोड़ा ये बताइए कहाँ तालीम हासिल की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है हम्माद अल कूफी के शागिर्द हैं, और हम्माद अल कूफी जो है इब्राहिम नकई के शागिर्द है, और इब्राहिम नकई जो है अलकमा के शागिर्द है, और अलकमा जो है अब्दुल्ला बिन मसऊद के शागिर्द है। अब्दुल्ला बिन मसऊद जो है जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द है। अब आप बताएं कि जुबैर अली ज़ई किसके शागिर्द है, ये बता दें। मौलाना हुसैन बटाली किसके शागिर्द हैं, आप जिसकी तकलीद करते हैं वो किसके शागिर्द है, ये बता दें। नहीं आपको बताना पड़ेगा, मैंने बताया ना अबू हनीफा का, अब आपको बताना पड़ेगा तभी आगे बात होगी, वरना नहीं। भाई आप कहाँ से, अच्छा जुबैर अली ज़ई जो है वो किसके शागिर्द है, ये बताओ। आप ये बताइए कि शागिर्द किसको कहा जाता है। जुबैर, नहीं सवाल पे सवाल ना करे, जब सवाल किया मैंने जवाब दिया तो आप सवाल का जवाब दें। आप कह रहे हैं जुबैर अली ज़ई किसके शागिर्द है, ये बताओ। पहली बात पे रही थी, आपने जिसका हवाला मुझे दिया था, आप बताइए मुझे जुबैर अली ज़ई किसके शागिर्द है जिसकी आप तकलीद करते हैं। आपने हवाला दिया था ना मुझे उनकी किताबों का भी, चले बताएं। बात को मत बने, पहले इस बात नहीं मैंने आपके सवाल का जवाब दिया ना, आप मुझे आप बताएं कि आप पूरी बात करते हैं वो किसका शागिर्द है। आपका नाम मुकम्मल है, नाम मुकम्मल नहीं है, मैंने आपने शागिर्द से पूछा किससे तालीम हासिल है, मैंने बता दिया।
अब आप मुझे बताइए जुबैर अली ज़ई किसके शागिर्द हैं? एतराज कर रहा हूँ, एतराज का जवाब दीजिए। फिर नहीं, आप पहले मेरा जवाब दीजिए, मैंने आपका दे दिया। आप एतराज में कुछ भी निकाल सकते हैं ताकि आपको सवाल का जवाब ना देना पड़े। आप एतराज निकालने वाला कुछ भी एतराज निकाल सकता है, मेरे भाई 2 अजान का इनकार कर सकता है, 3 तलाक को 1 बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो भाई आपको अगर आप सही हक पे हैं तो फिर कोई इनकार अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह हक पर है, लेकिन गुफ्तगू जो है उसूल बा उसूल होती है, उसूल बा उसूल होती है। हाँ, तो मेरे एतराज उसूल इसलिए होती है क्योंकि एक सवाल का जवाब मैंने आपका दिया, आप मेरे सवाल का जवाब देखिए। आपने जुबैर अली ज़ई के बारे में जो हवाला दिया, आपके वो आलिम है तो उन्होंने किससे तालीम हासिल की ये बता दो। सवाल का जो जवाब दिया है, ठीक है, आप दीजिए ना, जवाब दिया आप दीजिए ना। अगर इस तरह देखे तो जुबैर अली ज़ई को मिलाएंगे अल्लाह के रसूल से पूरी चैन मिला देंगे, पूरी सदी मिला दीजिए, चलो मिला दीजिए। वो मुझे याद, उनकी याद नहीं है, ठीक है ना, मुझे मिला दीजिए ना। जब आपको नहीं मालूम है कि उसका सिलसिला जाकर रसूलुल्लाह तक पहुंचता है भी नहीं, तो फिर आप उसको फॉलो क्यों करते हो? जब फॉलो करते तो दावा क्यों करते हैं कि रसूलुल्लाह हम कुरान हदीस पर चलते हैं, हमारे हदीस है, ये बता दो। मेरे भाई पहले सवाल के जवाब दीजिए, ठीक है ना? नहीं, आप इस पर ही बात करें। मैंने जो इमाम अबू हनीफा के उस्तादों का नाम गिनाया, तो आप अपने उस्ताद का नाम बताएं कि आपको उस्ताद का सिलसिला जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलता है या नहीं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसको फॉलो क्यों करते हैं? जब फॉलो कर लेते हैं अनजान बनकर, तो फिर आप कुरान हदीस का दावा क्यों करते हैं? फॉलो करते हैं, मैंने कहा आपने हवाला दिया था नहीं शुरू में कि जुबैर अली ज़ई ने किताब में लिखा है, दिया था या नहीं? अल्लाह की कसम खाकर कहो। मैंने हवाला दी, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आपने कैसे हवाला दिया? आपको पता है कि जुबैर अली ज़ई ने सही लिखा है या गलत लिखा, आपको पता है? तो मैंने उसको फॉलो थोड़े करता हूँ, हवाला दिया। चला, आप बुखारी मुस्लिम करते हैं, आप बुखारी के उस्तादों का नाम बता दें। आप चलिए बुखारी की तकलीद करते हैं, बुखारी के उस्तादों का नाम बताएं। इमाम बुखारी का उस्ताद कौन था, उनका उस्ताद कौन था, उनका उस्ताद कौन था, और पूरा सिलसिला बताएं नबी तक जाकर मिलता है। अगर नहीं मिला पाया तो मैं कहूंगा कि आप क्यों इनकी तकलीद करते हैं जब आपको नहीं पता, तो और क्यों दावा करते कुरान हदीस का? जब आपको ये सिलसिला जाकर नबी तक मिलता है, यही नहीं पता, तो फिर क्यों करते हैं तकलीद इनकी? ये बता दें, चले जवाब दीजिए। अच्छा, तो मैं तो जवाब बता ही सकता हूँ कि बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर गलत हो जाएगा। आप इमाम बुखारी करते हैं ना, इमाम बुखारी ने सही कहा, इमाम बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की सही हदीस है, बिल्कुल मुस्लिम का पूरा सिलसिला जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बता दो कि मुस्लिम ने जो हदीस ली है किससे लिए, फिर फलाने किससे लिए, फलाने किससे लिए, पूरा रसूलुल्लाह तक मिला दो। चलो मिलाकर बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम अहले हदीस। और नहीं मिला सकते तो फिर क्यों अहले हदीस? अहले हदीस उसको कहा जाता है जिस हिसाब से आप, ये मेरी बात, जिस हिसाब से आप दावा करते हैं ना कि हम डायरेक्ट कुरान सुन्नत को फॉलो करते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते। आपके अल्फाज हैं कि हमारा कोई रहनुमाई नहीं करता, आपके अल्फाज थे इसी रिकॉर्डिंग में। तो फिर आप सही बुखारी, जो इमाम बुखारी है उसका सिलसिला जाकर नबी तक मिला के बताओ कि उन्होंने हदीस फला से किससे ली, सब एतबार वाले हैं या नहीं। चलो मिलाइए। तो मतलब किया आपको आज जो है इमाम बुखारी का सिलसिला पूरा रसूलुल्लाह तक मिलाना पड़ेगा, वरना आज से आप उनकी हदीसें लेना छोड़ दें, वरना अहले हदीस कहना छोड़ दें अपने आप को। गलत बात इस तरीके से गलत नहीं कर रहा हूँ, खुदा की कसम गलत बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अहले हदीस से आप सिर्फ अल्लाह रसूल की मानते तो बीच में बुखारी क्यों, बीच में मुस्लिम क्यों, बीच में जुबैर अली ज़ई क्यों? कोई नहीं आना चाहिए ना। आपने कहा ना कि हमारी अहले हदीस की रहनुमाई कोई नहीं करता, तो जब रहनुमाई कोई नहीं करता तो बुखारी कौन, मुस्लिम कौन, ये बताओ। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि इमाम बुखारी के में इमाम बुखारी का पूरा जो लिया करके उन्होंने फला से हदीस ली, उन्होंने फला से हदीस ली, उन्होंने फला से हदीस ली, पूरा रसूलुल्लाह तक मिलाकर बताओ ताकि हमें लगे कि आप वाकई अहले हदीस और आप डायरेक्ट कुरान सुन्नत को फॉलो करते हैं। अच्छा, तो एक मैं देखिए, मैं इमाम बुखारी के फॉलो नहीं करता, सीधी सी बात है, ठीक है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तो बुखारी पढ़ना आपसे छोड़ दो, मुस्लिम का सिलसिला मिलाए। ये मतलब कितना मतलब गलत है भाई। आपने कहा इमाम बुखारी को फॉलो नहीं करते, तो फिर हदीस क्यों लेते जब फॉलो नहीं करते? उनको फॉलो नहीं करते, बस उनको फॉलो, आप फॉलो नहीं करते, हदीस भी लेते, ये क्या मतलब हुआ? मतलब अप्पा को अप्पा नहीं मानता हूँ लेकिन अप्पा है भी, ये क्या मतलब हुआ? हमारी आखिरी मंजिल नबी अकरम है। हाँ, तो आखिरी मंजिल की बात करो, फिर पहला छोड़ो, पहला जिना छोड़ो, आखिरी पर बात करो। रसूलुल्लाह तक जाकर मिला उस हदीस को, जिस हदीस को आपने अभी तक लिया है और माना है, अमल किया है। बुखारी का जाकर सिलसिला मिलाओ, मुस्लिम का भी जाकर के मिलाओ, हर एक हदीस का मिलाओ, जुबैर अली ज़ई का भी मिलाओ जिसका तुमने हवाला दिया। ये तो बहुत आसान बात है कि कोई भी मिला सकता है, कोई भी एक हदीस पढ़ देगा, सनद मिला तो आसान बात है। अरे क्या दिक्कत है? आप अहले हदीस है, मुझे आपसे उम्मीद है, क्योंकि हम अहले हदीस होने का दावा नहीं करते, क्योंकि हम छोटे मोटे लोग हैं, बड़े लोग नहीं हैं। आप मिलाकर बताएं इमाम बुखारी का पूरा सिलसिला रसूलुल्लाह तक, इमाम बुखारी ने बुखारी में ये हदीस फला से ली, फला से ली, उसने फला से ली, उसने फला से ली, और पूरे लोग जो है काबिल एतमाद और पूरा जाकर सिलसिला नबी तक मिलता है, तब जाकर आप अहले हदीस कहलाएंगे। और आप डायरेक्ट कुरान सुन्नत को फॉलो करते हैं, आप बीच में बुखारी को नहीं लाते। चले बताइएगा। ए भाई, तो एक हदीस सुने, हबीब बताने वाला सुने आपने, जो बुखारी की सबसे आखिरी हदीस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका रावी भी कौन है? पढ़ लेना अच्छे से जाकर।
चलिए बताइए आप। वही है जो रावी जो अहनाफ की नजर में गुजरते हैं। अरे यार, तुम बुखारी की पहली हदीस की बात करो और पहली हदीस को ले जाकर रसूलुल्लाह तक मिलाओ कि सही इमाम बुखारी ने फला से हदीसें ली। और मैं यही सवाल हर अहले हदीस से करूंगा जो अपने आप को अहले हदीस कहता है। और जुबैर अली ज़ई का आपने पहले नाम लिया था कि उसने लिखा किताब में, तो उनका भी सिलसिला जाकर मिला है। अगर आपके लिए जुबैर अली काबिल एतमाद हैं तो आपको उसको पूरा शजर नसब मालूम है। भाई आप समझ क्यों नहीं, भाई हम उनको फॉलो नहीं करते, बस हम फॉलो नहीं करते तो बात को कैसे रखा उसकी? जब उसको फॉलो नहीं करते, हम इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं तो उनकी बात लेते हैं, नहीं करते तो नहीं लेते। आप फॉलो करते हैं तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम उनकी बात को नहीं लेते, फॉलो बात लेकर के तो फॉलो नहीं करते। रसूलुल्लाह की बात एक शख्स से लेते हो जिसको आप फॉलो नहीं करते, ये कौन सी बात हुई? हमने क्या कहा, हमारी आखिरी मंजिल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी मंजिल की बात कीजिए, पहला जीना छोड़ दें आप पहला जीना छोड़ दें, रसूलुल्लाह की बात करें। आप रसूलुल्लाह की बात करें ना, फिर आखिरी मंजिल पहला जीना छोड़ दें आप जो है पहला जीना छोड़ दें आप। बुखारी मुस्लिम पढ़ना छोड़ दें, जुबैर अली का हवाला देना छोड़ दें, सबको छोड़ दें आप। खुद कुरान इसको घर बैठे मसले मसाइल निकाले, वो आपकी आखिरी मंजिल है। सही मैं कह रहा हूँ, कसम खाकर कह रहा हूँ। हदीस क्या है तो हदीस कहाँ से मिलेगा अगर छोड़ देंगे तो? इमाम बुखारी से मिलेगा। और हदीस को लेने के लिए इमाम बुखारी की तकलीद करना पड़ेगा, हर हाल में उनके तलबे चाटना पड़ेगा। उसके बाद उस हदीस को सही है, गलत है, मरफू है, मौजूद है, चारों अहम अरबा के तलबे चाटना पड़ेगा। किसी से काम नहीं चलेगा। इमाम बुखारी या कोई भी फला जो हदीस ला रहा है उसको समझने के लिए अम्मे अरबा के पास भी जाना पड़ेगा, उसके तलवे भी चाटना पड़ेगा। किसी से इल्म लेना, किसी की तकलीद करना नहीं होता। ये कहाँ लिखा है कि इसी से आप मुझे बता, आपने शुरू में कहा था, कि हम जो है मौलाना से समझते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को। तो अगर हम इमाम अबू हनीफा सहाबा के शागिर्द से बात को समझते हैं तो आप क्यों कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आज के जमाने में कौन से आप उन्हें छोड़े, इमाम बुखारी का सिलसिला जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलाएं, उनकी हदीस जो होती है ना, सीखेंगे ना। इमाम अबू हनीफा का नाम क्यों लेते हैं आप? इमाम बुखारी की हदीस जाकर के आप पूरा उनका सिलसिला नबी तक मिला के फला ने फला से ली फिर रसूलुल्लाह तक मिलाएगा। और नहीं मिला सकते या तो बुखारी पढ़ना छोड़ दे या बुखारी का हवाला देना छोड़ दे। आप सब लग रहा है कि मतलब नहीं मैं देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सुकून इत्मीनान से हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह उतने मतलब गहराई में नहीं उतरे हैं। नहीं गहराई में तो आप नहीं उतरे हैं, गहराई में मैं जब उतरा हूँ तो आप जो है आपको गहराई समझ में आ रही है। आप तो ये कुरान और हदीस को समझना इतना आसान नहीं होता है। खबानी पड़ती है, उलमा की गुलामी करना पड़ता है, चारों अइम्मा अरबा के तलवे चाटना पड़ता है, तब जा करके तौफीक नसीब होती है। इंसानों को ये समझ में आती है कि भैया ये तकलीफ जो हम करते हैं। आपने किसी इमाम की चैन सहाबा की जान कर नहीं हुआ। आप देखिए, आप मैं जिंदर साहब से सही मुतालबा कर रहा हूँ कि आप इमाम बुखारी की बात को मानते हैं, किस बिना पर मानते हैं? अच्छा छोड़े, आप सुनिए मेरी बात। ये मतलब ये सहाबा के शागिर्द हुए तो अब आप गड़बड़ा गए, आप गड़बड़ा गए। आप मुझे बताएं कि आप इमाम बुखारी की हदीस को मानते हैं, आप किस बिना पर मानते हैं? रसूलुल्लाह ने कहा कि बुखारी की वाली हदीस सही है, ले लेना। आपने क्या कहा? हम रसूलुल्लाह को मानते हैं, हमारी आखिरी मंजिल रसूलुल्लाह है। तो आपकी आखिरी मंजिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुखारी की सही वो हदीस जो है वो ले लेना। उसके उम्मत का इजमा है भाई। उम्मत का इजमा तो आप मानते नहीं। उम्मत का इजमा किस बिना पर मानते हैं? आपके जो आलिम है मोहम्मद जूनागढ़ी अपने किताब सफा तरीके मोहम्मदी में लिखते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात को भी नहीं मानते जो बावही ना हो। मतलब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के साथ कोई बात बोलेंगे तभी उस बात को मानेंगे हम, बगैर वही के तो नबी की भी नहीं मानेंगे। तो इजमा कहाँ से आया? आप आप कह रहे थे कुरान हदीस इजमा को लेके आ गए। वो जो मुगीस और बरीरा अगर इजमा कयास और बुखारी और अबू ज़र ज़मीर से इतनी मोहब्बत है ना तो इमाम अबू हनीफा की मान लो कभी। भाई मुगीस और बरीरा का वाक़या सुना आपने? नहीं, आपने कैसे कहा कि इजमा है? इजमा आप मानते हो? जूनागढ़ी आपके बहुत बड़े आलिम हैं, मोहम्मद जूनागढ़ी की निस्बत से कुछ लोग आपकी जमात के मोहम्मदी लगाते हैं, जैसा कि सलमान मोहम्मद, अब्दुर्रहमान मोहम्मद, बड़े बड़े लोग लगाते हैं। कौन नकल किया है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की निस्बत से लोग कादियानी फिरके को अहमदी लगाते हैं, उसी तरह मोहम्मद जूनागढ़ी की निस्बत से मोहम्मदी लगाना शुरू कर दिया। आपने जूनागढ़ी का जो कौन नकल किया है तो क्या कह रहे हैं कि मुगीस और बरीरा का वाक़या सुना है? नहीं, मैंने आपने जो कहा था उस बात पर मैंने आपको बताया कि आप कह रहे हैं कि कयास की आप मान रहे कयास, तो आपके आलिम तो बावही जो रसूलुल्लाह कहते हैं वही के साथ बात मानते हैं, वरना उनकी नहीं मानते। तो आप कयास इजमा को मानते ही नहीं है तो आपने कैसे इजमा का नाम लिया?
अगर आपने सुना है तो बोलिए, वरना क्या है हम सुनाते हैं आपको दूर सर बरीदा का। आप जो है ना, आप देखिए खिचड़ा मलीदा कर रहे हैं, आप खिचड़ा मलीदा कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा, आपकी जमात में इजमा जायज है, इजमा आप मानते हैं, इजमा आप मानते हैं, बिल्कुल नहीं करें, इजमा कयास मानते हैं आप। में है कि अल्लाह के रसूल की इत्तबा करो, तो अल्लाह की इत्तबा करो, रसूल की इत्तबा करो। रसूलुल्लाह की, अगर किसी इमाम से रसूलुल्लाह की बात को ले लेना, ये रसूलुल्लाह की इत्तबा नहीं हुई, वो इमाम की इत्तबा हो गई क्या? अगर ऐसी है तो फिर आपने जुबैर अली ज़ई का हवाला क्यों दिया? आपने बुखारी से हदीस, रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि बुखारी की सारी हदीस बुखारी की सारी हदीस मान लिया। इमाम अबू हनीफा जो है, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद के उस्ताद हैं। सुनिए जनाब आली, इमाम बुखारी जो है, जिसको आप कहते हो कि बुखारी से बता दो, मुस्लिम से बता दो, वो इमाम बुखारी के दादा उस्ताद इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। तो जब आप इमाम बुखारी की तकलीद कर सकते हो, जबकि रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि इनकी हदीस सही वाली ले लेना, मुस्लिम की सही वो ले लेना, तो इमाम अबू हनीफा की हम मानते, तो उसमें तो मसला है आपको। जो चीजें आप निचले दर्जे की कर रहे हो तो हम ऊंचे दर्जे की अच्छी क्वालिटी कर रहे हैं, तो आपको उसमें क्या मसला है मेरे भाई? इमाम बुखारी का आपने कैसे इमाम बुखारी की जो आप हदीस लेते हो किस बिना पर लेते हो? रसूलुल्लाह ने कहा कि वो हदीस सही है, कैसे आपने साबित किया कि बताइए आप मुझे। इमाम बुखारी की जो हदीस आप लेते हो, रसूलुल्लाह ने कहा वो हदीस सही ले लेना, जब अगर नहीं कहा तो आप क्यों लेते? जांच पड़ताल आपके कौन है? मुहद्दिसीन का आपसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, आप तो अल्लाह रसूल को फॉलो करने वाले, तो बीच में मुहद्दिसीन कहाँ से आ गए? मुहद्दिसीन को फॉलो करना है, आप सुनिए मेरी बात, अगर को फॉलो करना है और इजमा को फॉलो करना है, तो इजमा है 3 तलाक मानते हो? पूरी उम्मत का इस पर इजमा है 3 तलाक, पूरी उम्मत का इस पर इजमा है कि 2 अजाने हैं, पूरी उम्मत का इस पर इजमा है कि औरत सिमट कर सजदा करेगी, पूरी उम्मत का इजमा है, पूरी उम्मत का इस पर इजमा है। तकलीफ करते हैं 4 इमाम है, क्यों नहीं मानते? पूरी उम्मत का इस पर इजमा है कि इमाम खामोश रहेंगे, तो आप क्यों नहीं मानते? फिर इमाम बुखारी के अब आप जो है ना, आप थोड़ा सी ना जनाब पगलिया गए, आपको रोजा लग रहा है, आपको रोजा लग रहा है, आप जो है आप कुछ नहीं बता सकते। आप अगर मुहद्दिसीन की बात मानते तो मुहद्दिसीन 3 तलाक को 3 मानते हैं, आप क्यों नहीं मानते? मुहद्दिसीन जो है 2 अजान के कायल, आप क्यों नहीं मानते? मुहद्दिसीन जो है सिमट कर सजदा करती है, मुहद्दिसीन का कहना यह है कि औरत सिमट कर सजदा करेंगी, उसमें हया है, तो आप क्यों नहीं मानते? इस पर इजमा है उम्मत का, आपने कहा ना कि इजमा है, इजमा बहुत चीजों पर है, उसको क्यों नहीं मानते आप? तो बहुत चीजों पर क्यों नहीं मानते हैं आप? हमको आपकी अकल की हया नहीं। जब आप जो है ना, जब आप रसूलुल्लाह और अल्लाह का लेबल लगा करके गैर को फॉलो करोगे तो यही हश्र होगा। जो उम्मत के इमाम हैं बड़े, उनको छोड़ करके किसी अजहल की जो है कुछ नहीं आता जाता, उसकी आप तकलीद करोगे, उसकी बात को मानोगे और कुरान हदीस का लेबल लगाओगे उस पर, तो यही हश्र होगा। देखिए मैंने कहा कि पूरा हश्र होगा जो हश्र अभी आपका हुआ है, समझ रहे हैं आप? जब आप लेबर रसूलुल्लाह का लगाओगे और काम जो है किसी और का करोगे, तो वो उस रास्ते पर पहुंचोगे भी नहीं आप। अच्छा आप दावा करते हैं। अच्छा आप ये मानते हैं कि इमाम अबू हनीफा जो इमाम बुखारी की हदीस लेना, उनकी तकलीद करना, यही ना कहना चाहते हैं? ये तो आप कहते हैं ना, हमने कब शुरू किया ये कहना तकलीद तकलीद तकलीद? आप कहते हैं कि फला की तकलीद किया शिर को, फला की तकलीद किया शिर को, फला को अपना माबूद बना दिया, फला को ये कर दिया, फला को। अगर हमने तो डॉक्टर जाकिर नायक को अपना माबूद बना दिया, तुमने तो एडवोकेट साहब को अपना माबूद बना दिया, तुमने तो डॉक्टर फराज आशिफ को अपना माबूद बना दिया। अगर हमने किया ना, तुम भी तो मुशरिक कहलाए ना यार। जो चीज तुम निचले दर्जे ही कर रहे हो, हम तो इजमा को लेकर चल रहे हैं, इस पर इजमा नहीं है। तकलीद करते हैं तो हम भी तकलीद करेंगे, आप तकलीद का मसला क्या है? जब हम भी तकलीद तुम भी तकलीद, तो मसला क्या है? फड्डा क्या है? शुरू में कहा था ना, फड्डा क्या है? नहीं करता हूँ किसी की, मैं तो सीधे अल्लाह के रसूल से सीधे अल्लाह। अच्छा ठीक है, आपने बोला सीधा अल्लाह के रसूल, तो फिर बीच में इमाम बुखारी क्यों, जुबैर अली ज़ई क्यों, तौसीफुर रहमान, इमरान बरोबर, ये बताओ। उनकी तकलीद करना नहीं है, तो फिर अगर ये तकलीद करना नहीं तो इमाम अबू हनीफा की भी बात को मानना, उसको माबूद बनाना या शेर को कहते वो नहीं हुआ? फिर वो तकलीद करना उस वक्त होता है जब हम कहते हैं कि इमाम बुखारी बस यही है, इमाम बुखारी तक ही है, उनसे आगे नहीं, तब आपको इमाम बुखारी की पूरी हदीस जो है अल जामिउ सही जो है, उसको पूरी हदीस को सही मानते हैं या नहीं मानते? ये बात बताएं मुझे। मानते हैं आप? पूरी हदीस मानते, किस बिना पर मानते? रसूलुल्लाह ने कहा कि वो पूरी हदीस सही है, ये मान लेना। इजमा है इस पे, उम्मत का इजमा तो आप मानते नहीं ना भैया। अगर इजमा मानना है तो 3 तलाक 3 इजमा है इस पर, 2 अजान इजमा है इस पर, हैं?
और सिमट का सट्टा करेगी, इस पर इजमा क्यों नहीं मानते? कैसी दोगली पॉलिसी करते हैं आप? दोगली पॉलिसी हो गई यार, दोगली पॉलिसी हो गई। आप जिसको इजमा कह रहे हैं उस पर से एक बात ले रहे हो, 17 बात छोड़ रहे हैं आप। आपने इजमा की बात की तो इजमा तो 3 तलाक 3 होने पर भी है, इजमा तो 2 अजान पर भी है, इजमा तो सिमट का सट्टा करने पर। कैसा इजमा की उम्मत नहीं मान रही है? कैसा इजमा है? कैसा इजमा जिसको अच्छा, उम्मत नहीं मान रही? उम्मत कौन? अरे मेरे भाई उम्मत कौन? उम्मत कौन? जिसको 1984 दिसंबर को जिसने अंग्रेज ने रजिस्टर करके अहले हदीस का नाम लिया, वो उम्मत है। सीरत सनाई आपकी ही किताब छपी है, आपके ही तरफ से ये किताब छपी है सीरत सनाई। 1984 3 दिसंबर को मौलाना हुसैन बटालू जो आपके आलिम है, उन्होंने इस नाम से आपको रजिस्टर करवाया अहले हदीस। तो इस पर मैं पूरा आपको दलील दे सकता हूँ किताबों से। आप इसको उम्मत कह रहे हैं इतनी छोटी जमात को, और हम्बली मालिकी शाफी जो पूरी दुनिया में फैले हुए, जिनका गलबा है 1000 सालों से 1400 सालों से, आप उसको गलत ठहरा रहे हैं, उसको उम्मत नहीं कह रहे हैं। आप अभी इमाम अबू हनीफा को तरफ से, फिर जूनागढ़ी की तरफ आया, फिर जूनागढ़ी की तरफ में इसलिए आया क्योंकि वो आपके आलिम थे, आपके आलिम थे। आप इजमा को मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नबी की बात को भी नहीं मानेंगे। डिफरेंस देख रहे हैं आप, कितना फर्क है। आप मुझे बताएं कि आपने जो इमाम बुखारी की पूरी किताब को सही माना है, सही बुखारी को, आप किस बिना पर माने? आप जब रसूलुल्लाह ने नहीं कहा वो सही है, बोलते रहे भाई आप। ठीक है, आप है ना दोगली पॉलिसी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह की बात मानेंगे और अल्लाह की बात मानेंगे, फिर आप बुखारी की बात मानते हैं। और बुखारी पर जब मैं पूछता हूँ किस बिना पर माने, तो आप कहते हैं कि मुहद्दिसीन की बात है। तो जब इतनी इसकी गुलामी करना, मुहद्दिसीन की मानना है, इजमा की मानना है, जुबैर अलज़ई की मानना है, तो रसूलुल्लाह को डायरेक्ट क्यों कहते हो कि हम डायरेक्ट नबी को फॉलो कर रहे हैं? ये नबी को डायरेक्ट फॉलो करना थोड़ी हुआ यार मेरा भाई। बीच में वास्ता क्यों ला रहे हैं आप? बीच में वास्ता लाने की जरूरत क्या है आपको? हैं? अभी तो आप देखिए, आपने जवाब नहीं दिया। आप लपक कर कभी डाल पर, कभी आप बुखारी छोड़ते हैं तो कभी आप मुहद्दिसीन को पकड़ते हैं, कभी आप इजमा को पकड़ते हैं तो कभी आप इजमा को छोड़कर रसूलुल्लाह तक जाते हैं आखिरी मंजिल तक, फिर आखिरी मंजिल छलांग मारकर सीधा बुखारी पर आते हैं, फिर कभी जुबैर अलज़ई तक चले आते हैं। हद तो ये है। तो ये सब करना छोड़ दे मेरे भाई, बहुत भयानक अंजाम होगा। सीधा सीधा चुपचाप रोटियां पकी पकाई है, चारों इमाम में किसी एक इमाम को फॉलो कर लो, मत इमाम अबू हनीफा को फॉलो करो, इमाम अहमद बिन हंबल को फॉलो कर लो, इमाम शाफी को फॉलो कर लो, वो रास्ता सीधा नबी तक जाता है। पूरी उम्मत के लोगों ने एतबार किया मेरे भाई, पूरी उम्मत के लोगों ने इस पर एतबार किया है। सबको फॉलो कर लोग नहीं है आप जैसा, जो आपकी जमात है छोटे। मेरे भाई कुछ तो जवाब नहीं, सबको फॉलो कर सकते हैं? सबको फॉलो नहीं कर सकते ना, तो खट्टा आ जाएगा बीच में। अच्छा, किसी एक को फॉलो करना है? एक को फॉलो करना है। और मैं आपके आलिम जो है ना, आपके जो आलिम है अबू ज़ैद ज़मीर, उनका कहना ये है, आपके जो आलिम है जुबैर अलज़ई, उनका कहना है कि चारों लोग हक पर हैं, ये चारों हक पर हैं। और ये तो इमाम हरम भी मानता है, हम्बली हक पर, इमाम शाफी हक में। ठीक है, आप ये बताइए कि इमाम अबू हनीफा हक है कि नहीं? आप ये बताइए। नहीं, बिल्कुल हक पर है। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि बुखारी की आप हदीस तो क्यों मानते हैं? जब रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, आप इसका जवाब दीजिए कि आप बुखारी की सारी हदीस को सही क्यों मानते हैं जब रसूलुल्लाह ने नहीं कहा? इमाम शाफी हक का जवाब दीजिए। आप रसूलुल्लाह ने जब नहीं कहा कि वो बुखारी की हदीस सही नहीं है, वो मुस्लिम की सही नहीं है, इसको मान ले, इसको मत लेना, इसको ले लेना, तो आप क्यों मानते हैं ये बताओ? और जब आप ये कहेंगे इजमा तो बहुत कुछ चीजों पर, आप इजमा को क्यों ठुकराते हैं? फिर तो भाई इजमा को हम कहाँ ठुकराए हैं? जरूरत पड़े तो इजमा हलाल हो गया, पकड़ लिया और अपनी जरूरत ना रही पर रख दिया आपने, इजमा को जूती की नोक पर रख दिया और रसूलुल्लाह का दावा करने लगे। ये दोगली पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आती। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपके कोई अहले हदीस आलिम है एडवोकेट फैज करके, उसको हमारे एक शेख ने फोन लगाया, उनसे मसला पूछा कि बिल्ली अगर चूहा खाकर फौरन मुंह डाल दे पानी में, उसके मुंह से गाल टपक रही हो, खून टपक रही हो, तो इसके बारे में मसला क्या है? बिल्कुल नया मसला था। तो उस आलिम ने घुमा फिरा किया, फिर कहा कि हम थोड़ी तहकीक करके बताते हैं, और वो बेचारा गया, उसको कुछ हल नहीं मिला। उसने इमाम अबू हनीफा के तलवे चाटना पड़ा बेचारे को। अम्मे अरबा का जो है ना इमाम हनीफा, उनकी किताब में उनका फतावा देखकर उसने बताया, और उसने मंसूब क्या किया, इमाम अहमद बिन हंबल पर मंसूब किया और अल्लामा इब्न तैमिया पर। लेकिन सामने वाले शेख को तो पहले से पता था। उसने कहा कि भाई आपने हवाला कहाँ से दिया? तो फौरन उसने झूठ बोला, बोले अल्लामा इब्न तैमिया और इमाम अहमद बिन हंबल ने भी इसकी तरफ गए, जबकि वो हिदाया में लिखा हुआ है कि पानी अगर डायरेक्ट जो बिल्ली है ना खून लगा मुंह में डाल दे फौरन, तो पानी नापाक, और थोड़ी देर बाद डाले तो वो पाक है। तो ऐसे ऐसे आप उम्मत को धोखा देते हैं। जब आज आकर के इमाम अबू हनीफा के ही तलवे चाटना है, तो क्यों आप इसके पास जाते हैं? जुबैर अलज़ई और फलाना ढिमकाना ये वो है, इसका जवाब दे दें आप मुझे।
हो गया, बोल दिए। नहीं, मैं बोल लिया, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। आप अगर मुझे बता दें बुखारी की बात क्यों मानते हैं आप? बुखारी की हदीस क्यों मानते हैं? अल्लाह ने नहीं कहा मानने, तो आप क्यों मानते हैं? अगर आप मानते तकलीद हो गई, आपके नजदीक तकलीद शिर्क है ना? शिर्क है कि नहीं ये बोलो? मैंने क्या कहा? मैंने तकलीद शिर्क है कि नहीं? ईमानदारी से कहना आपके नजदीक। मैंने जाके मैंने देख लीजिए, मैंने ये मुझे आप मुझे बताइएगा। मैंने कहा तकलीद कभी शिर्क के दर्जे पर पहुंच जाती है हमेशा। नहीं, आप अब ये इसमें चूरन मस्का ना लगाएं। आप मुझे बताएं कि हमारे एक लफ्जों में कहे तकलीफ शिर्क है या नहीं? अब वो इस पे पहुंच गया। तकलीफ तो हमेशा बिदअत है, ये है, लेकिन कभी शिर्क। अच्छा, तकलीफ बिदअत तो ये बिदअत आपने 1000 दफा की है, फिर तौबा करे उसके। और ऐसे लोगों की तकलीफ है जो मैं आपको बता नहीं सकता। हमने तो खैर पूरी उम्मत जिस पर एतबार करे तशरीहात पर, पूरी उम्मत हमारे साथ है और रसूलुल्लाह की बात हमारे साथ है कि उम्मत में बड़े तबके में रहो। ये बताइए कि हम आपके साथ है कि नहीं? है कि नहीं? आप हमारे साथ नहीं, अगर हमारे साथ होते तो आप अहले सुन्नत वल जमात होते। आप अहले हदीस थोड़ी लेकर घूमते। अटक का नाम, नकली नाम, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम, रजिस्टर कराया हुआ नाम थोड़ी लेकर घूम रहे होते। और घूम रहे तो आप घूम रहे तो अपना हशर भी देखो कहाँ है, आप कहाँ है वो हशर भी देखो। आप बुखारी में जवाब नहीं दे पाए। आप कभी मुहद्दिसीन पर आते हैं, कभी इजमा पर आते हैं, कभी रसूलुल्लाह पर जाते हैं, वहां छलांग मारकर अबू ज़र ज़मीर पर आते हैं। आप किसी के जवाब देना, इमाम अबू हनीफा का जवाब दिया ना, मुगीथ बरीरा का जवाब दिया ना। आपने कुछ नहीं दिया, आपने कुछ नहीं दिया जनाब, आपने कुछ नहीं दिया। वरना चले बताएं, एक सवाल का जवाब दे दे। आप कहते हैं कि तकलीद शिर्क है, तो आप बुखारी की सारी हदीसों को सही किस बिना पर मानते हैं? आपका दावा है कि हम डायरेक्ट नबी को फॉलो करते, रसूलुल्लाह की बात के अलावा किसी को नहीं मानते। तो आप जब रसूलुल्लाह ने बुखारी को सही नहीं कहा, रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि बुखारी की हदीस सही है, तो आपने बुखारी को कबूल कैसे किया कि पूरी हदीस सही है? ये बताओ। मैं कुछ बोलूंगा, तुम सुनती नहीं हो। जवाब दो तो क्यों नहीं सुनूंगा? तो सुनते नहीं रहे हो। मैं सवाल किया तुमसे, बताओ किसी से यही बनाना क्या? मैंने आपसे क्या पूछा है उसका जवाब दीजिए। आप बुखारी की पूरी हदीस को सही क्यों मानते हैं जब रसूलुल्लाह ने? वही तो मैं कह रहा हूँ, हम इमाम बुखारी से इल्म लेते हैं तो क्या उनकी तकलीद करना हुआ? तो अगर हम अबू हनीफा से इल्म लेते, ये तकलीद करना हुआ, शिर्क हुआ है? आप मुझे बताएं कि इमाम बुखारी पढ़े हैं, इमाम अबू हनीफा पढ़े हैं? इमाम बुखारी बाद में आते हैं। इमाम बुखारी जो है ना, पोता शागिर्द, इमाम बुखारी से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? पोता शागिर्द है बुखारी। इमाम अबू हनीफा पे स्टॉप हो जाते हो, हम इमाम बुखारी से आगे। इमाम अबू हनीफा पे स्टॉप नहीं होते हैं। किसने कहा इमाम अबू हनीफा पे स्टॉप होते हैं? आप जुबैर पे स्टॉप होते हैं, आप जुबैर पर स्टॉप होते हैं, इमाम अबू हनीफा पे स्टॉप नहीं होते। किसने कहा आपको ये बात? ये आपकी गलत फहमी है, या आपको बदगुमान किया गया, गुमराह किया गया, बहकाया गया है, बताया गया। तुम अपनी जुबान से ये कहो कि अगर सही हदीस मिल जाए तो इमाम अबू हनीफा की बात को दीवार पे मारा जाएगा अगर सही हदीस मिल जाए तो। लेकिन आप जैसे लोग जो है ना, अंग्रेजी का रजिस्टर नाम का, वो हमको नहीं सिखाएंगे दीन कि ये सही हदीस है, ये गलत है। हम बड़े बड़े उलमा की बात को मानेंगे, बड़े बड़े जो उम्मत के उलमा है उनकी बात पर एतबार करेंगे, इजमा को मानेंगे, कयास को मानेंगे, रसूलुल्लाह की बात को मानेंगे। आप तशरीह मोतबर नहीं होंगी हमारे नजदीक। मुझे कोई फायदा नहीं हुआ भाई। आप उस तशरीह को मोतबर करने के जिस पर साहबा चले। लेकिन मुझे आपसे बहुत फायदा हुआ, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने में मिला कि आप इतने बड़े खाली अंदर से, कि आप अहले हदीस कहते हैं लेकिन आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आप खाली हैं। मुझे आपसे बहुत फायदा हुआ। आपने ना कुछ बताया ना कुछ किया। आप कभी मुहद्दिसीन पर आते हैं, कभी इजमा पर जाते हैं, कभी रसूलुल्लाह पर जाते हैं, फिर छलांग मार कर बुखारी पर आते हैं, फिर अबू ज़र ज़मीर का हवाला देते हैं, कहते तकलीद नहीं करता, फॉलो नहीं करते उनको। तो जब नहीं फॉलो करते तो बात क्यों लेते हो उनसे? रसूलुल्लाह की बात किसी गहरे गहरे से ली जाती है क्या? और जब ली जाती है तो फिर मानो कि हाँ हमने तकलीद की, हाँ हमने ली, हमने इस पर एतबार किया, अंधा एतबार किया। क्यों नहीं मानते? चलिए रखिए, आप मेरे ख्याल से आप थोड़ी तहकीक करें आप, इंशाल्लाह आप जो है आ जाएंगे हक रास्ते पर। और छोड़ें इन सब फालतू चीजों को। संडास पर सोने का कवर लगा लेंगे, उसकी औकात नहीं बदल जाती, संडास ही होती है। तो अहले हदीस अगर कोई रजिस्टर करवा ले तो उसकी औकात नहीं बदल जाती, अंग्रेजी होता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।